Okay, so let's start with pH calculation of salts of polyprotic acids and bases. So how we will proceed in such a situation? So पहले तो let's take any polyprotic acid. Okay, जैसे suppose I take H3PO4. Okay, this is a polyprotic acid. If I take a salt, then you know what was salt? Salt was a species which has cation from a base, anion from an acid. So if I take a salt of phosphoric acid, the anion should come from phosphoric acid. What anions can come from phosphoric acid? You can see that phosphoric acid can give us three anions, three type of anions. Phosphoric acid can give me H2PO4 minus. This is the anion of phosphoric acid. Phosphoric acid can give us HPO4 2 minus, or phosphoric acid can give me PO4 3 minus. So we have three types of anions which can come from phosphoric acid. Agreed? Now, if I discuss about H2PO4 minus, which type of ion do you think it is? Yeah, which type of species is it? Is it a acid or is it a base? Can you tell me? बताओ. सर जिसके साथ रिएक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड कर मतलब मतलब अगर वो सपोज इसके बाद भी डिसोसिएट हो सकता है या यहाँ से किसी कैटायन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट भी बना सकता है. एक बात समझो, सॉल्ट जो होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. अब NaCl में क्या सोडियम आयन और क्लोरीन आयन रिएक्ट करते हैं क्या? अच्छा नहीं मतलब हाँ रिएक्शन नहीं होगा मतलब सॉल्ट बन जाएगा किसी दूसरे कैटायन के साथ. Anybody else wants to add anything? Sir, amphoteric. Yes, this is amphoteric because H2PO4 minus can act both as acid as well as base. Can it give a H plus? Yes. Can it accept a H plus? Yes. तो H2PO4 minus कैसी species है? It is a amphoteric ion. It can either accept a H plus or it can donate a H plus. So now, if H2PO4 minus acts as an acid, what will be its acidic dissociation constant? Can you tell me? K2 of H3. Ka2. Yes, very good. And if it acts as a base, what will be its basic dissociation constant? KB. Kb1. KW upon K. Kw upon कौन बोल रहा है? K1 होगा. Very good. Kw by Ka1. Because if it acts as a base, what is its conjugate acid? H3PO. जिसका एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka1, तो H2PO4 माइनस का बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Kw by Ka1.
Similarly, now tell me which type of species is HPO4 2 minus. amphoteric. वो भी amphoteric है. As a acid, what will be acidic dissociation constant of HPO4 2 minus? A3. K3. Ka3. And basic dissociation constant? Kw by Ka. Kw by Ka2. Ka2. सर स्क्रीन पे कुछ आ गया है पार्टिसिपेंट सेड क्या? सर स्क्रीन पे कुछ आ गया है. स्क्रीन पे कुछ आ रहा है. अब KW/Ka2 के बाजू में भी. आ रहा है कुछ? हाँ हाँ. सर. मेरी स्क्रीन तो क्लियर दिख रही है. नॉट सी. हाँ हाँ सर. सही है. अब क्लियर है? यस सर. Okay. Now, which type of species is phosphate? Basic. Is it amphoteric? नो सर. No. This cannot act as acid. It can only act as base with basic dissociation constant of Kw by Ka3. Agreed? Yes. So what we can see from this discussion that polyprotic acid से हमें दो तरीके के आयन मिल सकते हैं. एक तो इस टाइप के आयन्स मिल सकते हैं, एम्फोटेरिक आयन्स. एम्फोटेरिक आयन्स. और या इस टाइप के मिल सकते हैं, नॉन एम्फोटेरिक. नॉन एम्फोटेरिक मल्टीवैलेंट, क्योंकि इस तरह के आयन पे चार्ज हमेशा चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा होगा. मल्टीवैलेंट आयन. करेक्ट? सर नॉन एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? मतलब जो या तो इट कैन एक्ट ओनली एज एसिड और एज बेस. अच्छा ओके सर समझ गया. अब जैसे एक और एग्जांपल ले, H2CO3 भी पॉलीप्रोटिक एसिड है. हाँ सर. कैसे मिलेंगे H2CO3 से? HCO3 minus and हाँ. CO3 2 minus. CO3 माइनस और CO3 2 माइनस. CO3 2 minus. 2 माइनस. SCO3 माइनस इज एम्फोटेरिक. यस सर. क्या हो सकता है इसका एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा? K1. 2. K2. बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट Kw by Ka1. दिस इज नॉन एम्फोटेरिक. एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा ही नहीं. बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Kw by Ka2. सही है? क्लियर? यस सर. नोट कर लिया? बट सर यूजुअली लास्ट में बेसिक आयन्स ही आएंगे ना. नो मतलब. या नॉन एम्फोटेरिक मल्टीवैलेंट बेसिक आयन फॉर अ पॉलीप्रोटिक एसिड. ओके सर अंडरस्टूड. पॉलीप्रोटिक बेस होता तो लास्ट आयन विल बी अ नॉन एम्फोटेरिक मल्टीवैलेंट एसिडिक आयन. हाँ सर समझ गया सर. हो गया? इतना नोट किया? एक मिनट सर.
हो गया। ठीक है, तो चलो एक एक करके अब सब पीएच निकालना शुरू करते हैं। तो आई स्टार्ट विथ फर्स्ट सिचुएशन आई टेक हियर salt having an amphoteric anion and cation from a strong base। एग्जाम्पल बताओ जरा ऐसे सॉल्ट का मुझे। कैन यू टेल मी एग्जाम्पल्स ऑफ सच सॉल्ट? H2 NaHPO4 2 NHPO NaHCO3 NaH2PO4 NaHSO4 नहीं होगा। Na2SO4 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 भी नहीं होगा। सल्फेट आयन इज नॉन एम्फोटेरिक। ये होगा इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब इस तरह के सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच निकालें। तो इसमें देखो केटायन तो हाइड्रोलाइज करेगा, केवल एनायन हाइड्रोलाइज करेगा और एनायन एम्फोटेरिक है। तो सपोज मैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, तो उसमें बाइकार्बोनेट आयन की हाइड्रोलिसिस है SCO3-। Now this is the amphoteric ion, means it can act as a acid as well as a base। तो वाटर में इसके दोनों रिएक्शन होंगे। In one reaction it can act as acid, in another reaction it can act as base। Correct? What will be equilibrium constant of these reactions? पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी होगा पहले रिएक्शन। Ka2 A2 सर आपने रिवर्स Ka2 दूसरे W by Ka1 KW/K तो Ka2 is equal to concentration of carbonate into H3O plus upon concentration of bicarb, और ये हो जाएगा concentration of H2CO3 into OH minus by HCO3 minus। Agreed? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा डिवाइड करके? Ka1 Ka2 by Kw is equal to CO32 minus upon H2CO3
into H3O plus upon OH। सही है। KW को राइट साइड में ले जाएंगे तो KW अपॉन OH माइनस क्या हो जाएगा, H3O। कंसंट्रेशन है। हाँ RHS में H3O प्लस स्क्वायर आ जाएगा, तो हमें तो पीएच निकालना है, तो H3O प्लस की कंसंट्रेशन क्या मिल गई, रूट ऑफ Ka1 Ka2 और नेगेटिव लॉग लेके पीएच Pka1 प्लस Pka2 बाय, ये मिल गया पीएच ऑफ कच्चा सॉल्ट। नोट कर लो। तो आप ये सेकंड लास्ट स्टेप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? सर आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO3 टू मास रेस्ट टू CO3, इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली फ्रैक्शन को 1 ले लिया। तो ये क्यों किया आपने? भाई देखो, इसमें किसी को दिक्कत है कुछ? हाँ सर, 1 क्यों? हाँ सर, वही वही डाउट है। 1 क्यों लिया उसको? यार लास्ट क्लास में तो किसी ने कल कुछ नहीं पूछा इसके बारे में। yesterday I did this A plus B minus salt of weak acid weak base किया था, याद है? In that I took this AOH और HB की कंसंट्रेशन को बराबर ले लिया था, तब तो किसी ने डाउट रेज नहीं किया। सर मैंने पूछा था, आपने बोला था दोनों रिएक्शन एक साथ लिखो या अलग अलग लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने ये पूछा था एक साथ लिखा क्यों है, तुमने ये नहीं पूछा था अल्फा सेल। भाई चलो रुको, इस डिस्कशन को ऐसे शुरू करते हैं। अगर एक सॉल्ट सॉल्यूशन में केवल केटायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? आई एम सेइंग ये अच्छा डिस्कशन है, ऐसे करते हैं। अगर एक में ओनली केटायन हाइड्रोलिसिस इज हैपनिंग, then what will be the nature of solution? बेसिक 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 होगा अगर केटायन हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो। एसिड कटायन सॉरी एसिडिक होगा। This solution will always be acidic। अगर केवल एनायन हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो केवल एनायन हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो बेसिक दोनों केटायन एनायन हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो एम्फोटेरिक। अब क्या होगा? सॉल्यूशन नहीं सर, अब डिपेंड करता है, पीएच पे डिपेंड कर। पीएच पे डिपेंड करेगा। नहीं मतलब नेचर ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड करता है, कैसा सॉल्ट लिया। I have not got a satisfying answer. So concentration of acid and base. Concentration of acid and base। सर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है तो एसिडिक होगा। अरे यार स्ट्रॉन्ग एसिड वीक, बट कैटायन हाइड्रोलिसिस तो वीक एसिड वीक बेस में ही होगा ना। हाँ कैटायन एंड एनायन हाइड्रोलिसिस दोनों एक साथ,
हाइड्रोलिसिस दोनों हो रही है तो ऑब्वियसली सॉल्ट इज ऑफ वीक एसिड वीक बेस। बताओ, कोई बता रहा है? तो नॉर्मलिटी को डिपेंड करता है सर केबी की वैल्यू पे। ए के बी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कौन सी हाइड्रोलिसिस डोमिनेंट है, ज्यादा कौन सी है। करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में इफ cation hydrolysis dominates, cation hydrolysis is dominant, तब सॉल्यूशन होगा एसिडिक। And if anion hydrolysis is dominant, तब सॉल्यूशन होगा बेसिक। सही है, ये क्लियर है? यस सर। यार अब कल जो हम लोगों ने ये डेरिवेशन किया उसमें तो दोनों हाइड्रोलिसिस का अल्फा सेम ले लिया, तो हमने तो ये अज्यूम कर लिया कि कैटायन एनायन हाइड्रोलिसिस का अल्फा सेम है, तो आगे कुछ करना ही नहीं चाहिए, फिर तो हम सीधे इसका pH7 लिख दे। हाँ समझ रहे हो? तो ये गलत है अल्फा सेम लेना। आर यू गेटिंग दिस? सर नहीं सर। हाँ भाई अगर कैटायन और एनायन हाइड्रोलिसिस का अल्फा सेम है तो सॉल्यूशन का pH7 होगा ना। हाँ सर। तो अब देखो इसका एक्चुअल इसमें था क्या। देखो इस सॉल्यूशन में इसको हमें कैसे करना चाहिए था, कल वाला प्रॉब्लम। A plus H2O goes to AOH plus H plus, ठीक है। B minus plus H2O goes to HB plus OH minus, ठीक है। पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, बोलो। concentration of AOH into H plus upon A plus। कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा हूँ, एक्सप्रेशन में। Nobody in class can tell me equilibrium constant of first reaction. सर KW by KB of AOH और KW by K of H। उसका टाइम क्यों ले रहे थे, क्या सोच रहे थे? सर नहीं, माइक ऑन नहीं हो रहा था, पता नहीं। और कोई रिएक्शन होगा इस सॉल्यूशन में? वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन। वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन नहीं, अब ये लिखूंगा मैं। भाई पहले रिएक्शन में H प्लस बन रहा है, दूसरे में OH माइनस बन रहा है, दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर बना सकते हैं। हाँ और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा थर्ड रिएक्शन? 1 by KW। 1 by 10। मतलब 10⁻14। इतना हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब दिस ऑलमोस्ट कंप्लीशन टू कंप्लीशन। करेक्ट। यस सर। अब चलो स्टार्ट करते हैं। इनिशियल तो दोनों की कंसंट्रेशन सीसी थी, दोनों का अल्फा अलग अलग होगा। करेक्ट। हाँ तो तुम पहला कैसे लिखोगे इक्विलिब्रियम? इसका लिख लूं मैं, सपोज C1 माइनस अल्फा 1 C अल्फा 1 C अल्फा 1, सही है।
इसका मैं लिख लूं C1 माइनस अल्फा 2 C अल्फा 2 C अल्फा 2, सही है। तो पहले दोनों रिएक्शंस क्या इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं? कैन द फर्स्ट टू रिएक्शन अचीव इक्विलिब्रियम individually? Yes or no? कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका H प्लस OH माइनस थर्ड रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है ना। हाँ करेक्ट सर। अब थर्ड रिएक्शन तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन को जाएगा भाई। फर्स्ट दोनों रिएक्शन से ये C अल्फा 1 बन गया, ये C अल्फा 2। अब थर्ड रिएक्शन को तो कंप्लीशन तक जाना है, करेक्ट? यस सर। तो इन दोनों में जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। अग्री? हाँ भाई अल्फा 1 अल्फा 2 हाँ सर। कोई तो एक ज्यादा होगा ना दूसरे से। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. लेट्स से फॉर सेक ऑफ डिस्कशन लेट्स अज्यूम अल्फा 1 ज्यादा है। तो आफ्टर दिस रिएक्शन इज कंप्लीट कितने क्या कंसंट्रेशंस बचेंगी? सर C into अल्फा 1 होने अल्फा टू से 0 और C अल्फा 2। अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बचेगा ही। Yes, sir. हाँ सर। ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये तो टेंडिंग टू 0 हो गया है और ये बचा H प्लस C अल्फा 1 माइनस C अल्फा 2। H प्लस कैसी स्पीशीज है? H प्लस एसिड है, करेक्ट? यस सर। H प्लस तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। और Yes. अभी भी सॉल्यूशन में B माइनस बचा है। B माइनस क्या है? एक बेस, ठीक है। B माइनस बेस है और H प्लस स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो भाई H प्लस B माइनस से भी रिएक्ट कर सकता है। तो नाउ H प्लस कैन रिएक्ट विद B माइनस टू प्रोड्यूस Hb। ये रिएक्शन हो सकता है ना, H प्लस प्लस B माइनस गोस टू Hb। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? 1/k है। 1/k। तो ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक जाएगा, करेक्ट? तो इसमें तो रिएजेंट डेफिनेटली H प्लस है। तो पूरा ये C अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 H प्लस रिएक्ट हो जाएगा और H प्लस विल ऑल्सो टेंड ऑलमोस्ट टू 0, ठीक है। B माइनस कितना बचा? B माइनस था C1 माइनस अल्फा 2, उसमें से और रिएक्ट हो गया C अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। कितना बचा B माइनस? C into 1 minus alpha 1। 1 minus alpha 1। और HB कितना और हो गया? HB पहले से था C अल्फा 2 और बन गया C अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। कितना आ गया? C alpha 1। C alpha 1। अब मैं ये क्या गलत था जो लास्ट क्लास में किया था? अच्छा तो अल्फा सेम नहीं होते हैं लेकिन AOH और HB की मोलैरिटी सेम आ जाएगी ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन रिएक्शन। ये H प्लस इस B माइनस से रिएक्ट करेगा, ये OH माइनस इस A प्लस से रिएक्ट करेगा and they will bring AOH and HB again same। तो इसमें अब एक हमें की रूल याद रखना है। देखो ये पूरी OH माइनस तो इसलिए 0 आता बिकॉज वो H प्लस से रिएक्ट कर रहा था। A प्लस का बेटा अगर OH माइनस ज्यादा होता तो पहले H प्लस से रिएक्ट करता, बचा हुआ OH माइनस हाँ से रिएक्ट, हाँ सर करेक्ट? Yes. इसका की कंसेप्ट क्या है?
if there is a weak acid and weak base in solution, which are not conjugates of each other, एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है, then concentration of product of their reaction with water is equal. ये हमारा ट्रू कंसेप्ट। तो अब आ जाते हैं हम इस डेरिवेशन में, ये जो आज किया। SCO3 माइनस वीक एसिड है भाई, इस रिएक्शन में इट इज एक्टिंग एज अ वीक एसिड, करेक्ट? यस सर। एंड SCO3 माइनस दूसरे रिएक्शन में इज एक्टिंग एज अ वीक बेस। और SCO3 माइनस अपना ही कॉन्जुगेट नहीं है, करेक्ट? हाँ सर। So I have a situation of weak acid and a weak base which are not conjugate of each other. तो वाटर के साथ रिएक्शन से जो उनका प्रोडक्ट है उसकी मोलैरिटी बराबर होगी, and hence I have taken that ratio as 1. Agreed? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. से वो अपने कॉन्जुगेट नहीं है वो वाला पार्ट, उसके बाद भाई ये बाइकार्बोनेट का कॉन्जुगेट क्या है? या तो कार्बोनेट आयन है या कार्बोनिक एसिड है। बाइकार्बोनेट का कॉन्जुगेट खुद बाइकार्बोनेट आयन थोड़े ना है। हाँ हाँ सर, हाँ सर, ओके। सर आपको एक बार की पॉइंट बता सकते हैं? क्या? आपको सर बीच वाले 2 पेज दिखाए, पहले वाला पेज। हो गया? सर आप एक वो पेज दिखाए नहीं जो अभी हमने लास्ट में लिखा। ये लो। हो गया? Yes, sir. यस सर। तो अब आ जाते हैं दूसरी सिचुएशन में। सर 3 सेकंड। डन सर। Salt having non-amphoteric multivalent anion and cation from strong.
क्या एग्जाम्पल होंगे ऐसे सॉल्ट के? Na2CO3, Na2CO3, Na2SO. Na3PO4, करेक्ट? तो इसमें ऐसे सपोज Na2CO3 है, तो वो आयन हाइड्रोलाइज करेगा और क्या बनाएगा? ये तो केवल बेस की तरह ही एक्ट कर सकता है। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, ठीक है? और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा Kw/K2 is equal to C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। और अगर अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, if Kw/K2 is much less than C, तो अल्फा आ जाएगा रूट ऑफ Kw/C/K2 और पीएच निकाल के पूरा क्या आ जाएगा इसका? हमारा वही स्टैंडर्ड पीएच 7 प्लस हाफ लॉग C प्लस हाफ pKa2। सही है? यस सर। अगर Na3PO4 लिया होता तो कौन सा pKa आता? pK3 3 3। तो इसको जनरली pK2 की जगह मैं ये लिख देता हूँ pKa लास्ट, क्योंकि लास्ट आयन ही किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड का नॉन एम्फोटेरिक होगा। अग्रीड? यस सर। और बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट तुम चाहो तो अब पॉलीप्रोटिक बेस के लिख लो। तो पॉलीप्रोटिक बेस के लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो एक ले सकते हैं सॉल्ट हैविंग एम्फोटेरिक कैटायन, एम्फोटेरिक कैटायन and an ion from strong acid। तो इस केस में क्या हो जाएगा? POH will be equal to pKb1 plus pKb2 by 2 और salt having non-amphoteric multivalent cation and an ion from strong acid। तो क्या हो जाएगा? pH 7 माइनस हाफ लॉग C माइनस हाफ pKb लास्ट। सही है? यस सर। नोट कर लो। सर एक बार प्रीवियस पे डाउट है सर एक मिनट रुक जाइए। सर। इसमें HCO3 माइनस भी वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्या? HCO3 माइनस हाइड्रोलिसिस के अल्फा 1-2% होते हैं, ठीक है? तो मतलब HCO3 माइनस की मोलैरिटी कितनी है? 0.01 C। हाँ तो खुद ही नेग्लिजिबल अमाउंट में उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कराएंगे, ठीक है? ओके ठीक। नोट कर लिया? सर एक मिनट।
ओके सर। 1 मिनट सर। डन सर। ओके, चलो बुकलेट ओपन करो। एफडीएस के जो बचे प्रॉब्लम्स थे वो कर लेते हैं। एफडीएस में क्या क्या छोड़ा था? फोर्टी, 42, बाकी तो सब एफडीएस के कर लिए थे ना? थर्टी फाइव टू 47 में और कोई नहीं बचा है ना एफडीएस का? नहीं सर, और नहीं। ठीक है, करो इम्पोर्टेंट करो।
हो गया कंप्लीट? अच्छा 5 मिनट और। हम्म।
चलो बोलो, कोई डिस्कस करना है? आ गए सारे? 46, 46, 42. 45, 42, 45, 46. ओके, 42 में क्या गिवन है? A 0.01 molar solution of PuO2 NO3 whole twice. तो ये सॉल्ट है, ओके। तो अब इस सॉल्ट में कैटायन एनायन क्या क्या है? PuO2 2 प्लस कैटायन और नाइट्रेट इज एनायन। तो नाइट्रेट तो इज कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो anion is coming from strong acid. Cation is coming from, the cation is coming from polyprotic base. And which type of cation it is? It is a basic non-amphoteric non multivalent cation, correct? तो इसके pH का क्या एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था? 7 minus half log C माइनस हाफ पी के बी लास्ट, तो इसके लिए वो हो जाएगा पी के बी 2। पीएच इसका दिया है 4, मोलैरिटी दी है 0.01, कितना हो जाएगा? इसके लॉग कितना हो जाएगा? -2, करेक्ट? तो -2 इंटू हाफ है तो 1 हो जाएगा 8। तो पी के बी 2 आ गया 8। अब पूछा क्या है? तो एक तो के बी 2 ही पूछा है, 10⁻⁻8 आ गया, और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछा है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा? KW/KB2 10⁻⁻6। ठीक है? सर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मतलब जो ऊपर वाला जो रिएक्शन था उसका के ना? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मतलब इस कैटायन का वाटर के साथ रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ हाँ सर। 45 क्या दिया है? 45 में KHCH7O4 का पीएच निकालना है। एम्फोटेरिक एनायन है, करेक्ट? एम्फोटेरिक एनायन के लिए पीएच क्या होता है? pKa1 प्लस pKa2/2। ठीक है? जिसका डाउट था उसको क्लियर है? 45 हाँ, सीधे एम्फोटेरिक आयन वाला एक्सप्रेशन अप्लाई कर देंगे। 46
OH माइनस कंसंट्रेशन निकालनी है इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब जब इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड बेस आप रिएक्ट कर देते हैं। 0.1 मोलर एसिटिक एसिड और 0.1 मोलर NaOH। तो आपने एसिटिक एसिड और NaOH को रिएक्ट कराया, तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट और वाटर। दोनों को इक्वल अमाउंट में किया तो वॉल्यूम दोनों का सेम लिया होगा VV। तो फाइनली ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, ये बन जाएगा 0.1 V मोल। तो इस सॉल्ट की मोलैरिटी क्या हो गई? 0.1 V बाय टोटल वॉल्यूम हो गया 2V। 0.1 बाय 2, 1/20। ऐसा सॉल्ट है ये, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट। तो पीएच कितनी? पीएच क्या? OH माइनस पूछा है ना, तो सीधे OH माइनस का एक्सप्रेशन लगा लो। OH माइनस विल बी रूट ऑफ C into KW by K। एसिटिक एसिड का K गिवन है, दिया है 1.9 दिया है। 1.9 into 10⁻⁻⁵। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? FBO कहाँ तक कर चुके हो? सर आपने नहीं बोला था। अभी तक बोला नहीं है तो ठीक है। होमवर्क वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे। FBO कंप्लीट करना शुरू करो 1 to 82। ओके? सर आने खत्म होने वाला है क्या? नहीं, अभी कहाँ, अभी तो अच्छा एसिड और सॉल्ट किया। अब इनके मिक्सचर, फिर टाइट्रेशन, फिर सॉल्युबिलिटी, तो बहुत बचा है। नहीं सर, आपने 1 to 82 बोला तो मेरे को लगा। न्यूमेरिकल अब काफी हो गए हैं, न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, अच्छा, इसमें स्टार्टिंग में देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स इन FBO, जिसमें तुम्हें 4 ऑप्शंस देके ये पूछेंगे विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड या विच इज वीकेस्ट एसिड। यू हैव टू लीव दोस प्रॉब्लम्स फॉर नाउ। तो वो केवल एसिड को देख के उनकी स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं, दैट वी विल डू एट एंड ऑफ द चैप्टर। ओके ओके सर। हाँ, तो वो ऐसे वाले प्रॉब्लम सभी छोड़ देना। रिमेनिंग यू कंप्लीट। वेडनेसडे को इसी का डिस्कशन करेंगे। बिफोर आई मूव टू बफर सॉल्यूशन, पहले FBO करेंगे सो दैट इस पे थोड़ा कमांड बन जाए एसिड बेस सॉल्ट के pH कैलकुलेशन पे। ओके ओके सर। चलो आज फिर विल स्टॉप हियर। ये कंप्लीट करो वेडनेसडे तक, ठीक है? बाय एवरीबॉडी। Bye, sir. Thank you. थैंक यू थैंक यू सर। Thank you, sir.